हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुहेल गदवाल। वेलकम टू आवर चैनल गदवाल क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर, दैट इज एंगल्स। व्हाट इज एंगल्स? एंगल्स आर नथिंग बट whenever two lines or two faces cross each other or meets at a particular point, it makes an angle. Before this, we have seen that two lines which never cross each other, this is called as parallel lines. And now if two lines are intersecting with each other, it is called intersecting lines, and then only it makes an angles. Okay, here we can see that there are four angles. यहाँ पे क्या बन रहे हैं? चार angles बन रहे हैं. Angles are measured in degree and we use protractor to measure an angle. Generally, where we see the angles in our surroundings, we can see that in scissor, stick and chair. Okay, now we will see how to express an angle. एंगल को किस तरह से हम पढ़ेंगे या फिर लिखेंगे. ओके, यहाँ पे एक एंगल दिखाया हुआ है, एंगल ए बी सी. इसे हम किस तरह से रीड करते हैं? एंगल ए बी सी, एंड वी विल राइट इट लाइक दिस. एंगल, दिस इज द नोटेशन ऑफ एंगल, एंगल ए बी सी. ओके, जिस तरह से एंगल कहाँ बन रहा है? पॉइंट बी पे बन रहा है, तो पॉइंट बी शुड बी in between A and C. Okay, we can also write this like angle C B A. Both are correct. Okay, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसे हम वर्टेक्स कहेंगे. जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? पॉइंट बी पे क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है, तो पॉइंट बी को हम कहेंगे वर्टेक्स. ओके, now according to the size of an angle, the different names are given to it. So based on the size of an angle, let's see the types. There are 7 types. First one is zero angle. Okay, we can see the diagram. From point O, one ray is passing, then another ray is also passing through point O and resting on the same ray. It means there is a zero angle. Okay, it means it is equal to 0. The size of an angle is 0. It is called as zero angle. Next one is acute angle. It has measures, it is above 0 and below 90 degree. Below 90 degree and above 0 degree. It is called as acute angle. The next one is right angle. It is exactly 90 degree. It measures exactly 90 degree. It is known as right angle. The next is obtuse angle. It has range above 90 degree and below 180 degree. It is called as obtuse angle. The next one is straight angle. It has exactly 180 degree size. The next is reflex angle. The size of this angle will be above 180 and below 360. This is known as reflex angle. The next and last one is complete angle. As the name indicates, it completes 360 degree. It starts from here and goes to, again comes to the same position. It is known as, it has size 360 degree. Therefore it is known as complete angle. Now we will start with the practice set number 2. So first question is match the following. Here we have 2 columns are given. First column is measure of an angle and second one is type of angle. We have to match the size of an angle with the name of angle. Okay, first one is 180 degree. हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि 180 डिग्री को हम क्या नाम दिए हुए हैं? स्ट्रेट एंगल, राइट? सो वेयर इज हियर स्ट्रेट एंगल? सेकेंड बी. तो हम क्या करेंगे? बी के पास फर्स्ट नंबर लिखेंगे. ओके, next one is 240 degree. 240 is in between 180 and 360, right?
above 180 and below 360. What is the name of that angle? Right, reflex angle, right? It comes under reflex angle. So we can write here number 2. Next is 360 degree. 360 is complete, right? The name given to it is complete angle. Here it is at D position. So here we will write number 3. Okay, the last one is 0. It measures 0 angle. Now we will see the second question of practice set number 2. Second question is, the measures of some angles are given below. Write the names of each angle. Okay, here we have measures of an angle. We have to write the name of the angle. First one is 75 degree. We know the range of angles. Okay, it is below 90 degree. Okay, so we can say we know the name, that is acute angle. Okay, right? Above 0 and below 90, it is acute angle. Next one is 0 degree. As we know that name indicates it is 0 degree, 0 angle. Okay, next one is 215. It is between above 180 and below 360 degree. It is, which one is reflex angle. The next one is 360 degree. It is complete angle, right? Next one is 180 degree. Exactly 180 degree, we know the name, that is straight angle. Next is 120 degree. It is above 90 but below 180 degree. Okay, we know the name, that is obtuse angle. Next one is 148. Again it is above 180 above 90 below 180. So it is also obtuse angle. And the last one is 90 degree. We know the name is right angle. It is right angle. Here. तो आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तीसरा क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर्स गिवन बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ एन एंगल. ठीक है, हमें यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं. फर्स्ट इज सी द डायग्राम्स. किस तरह से हमें नजर आ रहा है, ये अबव 0 डिग्री है और 90 से कम नजर आ रहा है. ओके, अबव 0 एंड बिलो 90, इट इज एक्यूट एंगल. Okay, next one is, we can see here exactly 90 degree. 90 डिग्री को हम इस तरह से शार्प कॉर्नर से दिखाते हैं. ओके, ये होगा राइट एंगल. नेक्स्ट वन इज, अब यहां पर देखिए हमें नीचे की तरफ एरो दिखाया हुआ है. इट मीन्स हमें ये एंगल नहीं कंसिडर करना है, बल्कि नीचे वाला एंगल कंसिडर करना है. तो ये कौन सा नजर आ रहा है हमें, इट इज अबव 180 एंड बिलो 360. देन इट इज, क्या होगा ये, रिफ्लेक्स एंगल. ओके, नेक्स्ट वन इज, वी कैन सी स्ट्रेट एंगल. राइट, ये कितना नजर आ रहा है हमें, 180 डिग्री नजर आ रहा है. तो इसका नाम क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेट एंगल. हियर, अब यहाँ पे कोई ऐसा एरो नजर नहीं आ रहा है हमें. मतलब क्या है कि वही सेम लाइन पे और एक लाइन रेस्ट हुई है. इट मीन्स यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है. मेजर कितना दिख रहा है यहाँ पे, 0 डिग्री दिख रहा है. ओके, तो हम क्या, इसका नाम क्या देंगे, 0 डिग्री, 0 एंगल. ओके, नेक्स्ट वन इज
अब यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ से लेकर पूरा रिटर्न आके वहीं पे रेस्ट हुआ है। इट मीन्स ये पूरा 360 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। 360 डिग्री के एंगल वाले को क्या बोलेंगे हम? कंप्लीट एंगल। राइट, इस तरह से हमने 3 क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। कई सारे बच्चों को प्रोटेक्टर के यूज़ इस किस तरह से करना है ये पता नहीं होता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन के जरिए से सीखते हैं कि हमें प्रोटेक्टर किस तरह से यूज़ करना है। दिस इज़ अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को हमें देखिए यहाँ पे 2 रीडिंग्स दिए हुए हैं, जो लेफ़्ट टू राइट जाती है और एक राइट टू लेफ़्ट तक है। यहाँ पे लेफ़्ट में लिखा हुआ है फर्स्ट 0 टू, यहाँ पे है 180, एंड यहाँ पे जो सेकेंड लाइन में लिया हुआ है यहाँ पे 0 और यहाँ पे वो है 180। ओके, प्रोटेक्टर हमें 180 तक के इमेजेस दिखाता है। हमें इसका यूज़ करके क्या करना है? एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेना है, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट ले लिया है। उस पॉइंट को मैंने क्या करना है, उस पॉइंट से एक रे ड्रॉ करनी है। वो आप पॉइंट के राइट साइड में ड्रॉ कर सकते हैं या फिर लेफ्ट में भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसको राइट साइड में ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट से मैंने क्या किया है, एक रे ड्रॉ किया हुआ है। इस रे को क्या करना है मुझे, एग्जैक्टली ये जो वाली जो लाइन है, इस लाइन को मैच करना है। और ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है हमें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मैच करना है। एग्जैक्टली मैच करता है। ओके, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। एक्यूट एंगल का रेंज हमें पता है, जो कि 0 से ऊपर और 90 से कम होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट के राइट साइड में हमने एरो किया हुआ है, और जो एरो है हमने क्या किया हुआ है, राइट साइड वाली लाइन को मैच किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो 0 नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो ऊपर वाला 180 नहीं देखना है। जो 0 नज़र आ रहा है यहाँ के, वो रीडिंग्स को हमें देखना है। तो हमें क्या है, यहाँ पे 0 टू 90, तो हमें इसके बीच में कोई भी एक मेजर दिखा सकते हैं। जैसे कि हम सपोज यहाँ पे दिखा रहे हैं 50 वाला एंगल, ठीक है। 50 वाले पे मार्क किया मैंने। अब इसे क्या करना है, हमें जोड़ना है। ये वाला बन जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। इसी तरह हम इस तरह को इसको लेफ्ट में भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हम सपोज, अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है, एक पॉइंट ले लिया है। इसी पॉइंट को मैंने अभी लेफ्ट साइड में मैंने एक एरो ड्रॉ किया हुआ है, लेफ्ट साइड मैंने एक रे ड्रॉ की हुई है। अब क्या करना है मुझे, इसी प्रोटेक्टर को लेफ़्ट वाली रीडिंग को मुझे देखना है। तो हम क्या करेंगे, ये इस पॉइंट को इस सेंटर वाले पॉइंट से मैच करेंगे, और हमारा जो रे है वो मैच कर रहा है लेफ़्ट वाले लाइन पे, राइट। तो हमें देखना है ऊपर वाले रीडिंग्स को, जहाँ पे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको 50 तक मार्क करेंगे। ओके, अब इसे क्या करना है, मुझे ज्वाइन करना है। आप इन दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में सेम हम इसी तरह से करेंगे, जिसमें एक पॉइंट लेंगे हम, जिसमें हमें क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है। इस पॉइंट से हमें क्या करना है, एक राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड कोई भी एक रे निकालेंगे हम। अब क्या करना है, हमें इस पॉइंट को इस वाले मिडल वाले पॉइंट से मैच करना है, और ये जो वहाँ रे है उसको राइट साइड वाली लाइन पे मैच करना है। इसी तरह से हमने मैच किया हुआ है, पूरी मैच हो गई। देखिए अब हम क्या करना है, हमने राइट वाले एरो को मैच किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 0 से काउंट करेंगे, 0 टू 90 वाला, एग्जैक्ट 90। देखिए हम राइट साइड लो या लेफ्ट साइड लो, 90 वाला एग्जैक्टली वर्टिकल ही आएगा। ओके, हमने मार्क किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, रूलर की मदद से इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये वाला होगा हमारा राइट एंगल। ओके, इसी तरह से थर्ड वन है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की रेंज क्या है, 90 अबव और बिलो 180। ओके, इसी तरह से हम सेम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट को मैंने अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, लेफ्ट एक रे निकालता हूँ मैं। हम क्या करेंगे, उसी तरह से इस वाले पॉइंट को सेंटर वाले पॉइंट से मैच करना है, और लेफ्ट वो जो ये जो लेफ्ट रे दिख रहा है हमें लेफ्ट वाली लाइन पे मैच करना है एग्जैक्टली।
मैच होता हुआ नज़र आ रहा है बच्चों। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 से लेकर ऊपर जाएंगे, या ये 0 वाले को काउंट करेंगे ना कि 180 को, ठीक है। ऊपर वाला क्या है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब क्या करना है हमें 90 से अबव और 180 से बिलो। तो हम क्या कर सकते हैं 90 से अबव वाला कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 120 को, ठीक है, मार्क किया मैंने। अब इसको क्या करना है, मुझे जोड़ देना है। ये वाला होगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हमने आज प्रोट्रैक्टर का यूज़ करना सीख लिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।